Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will be discussing about COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. Before I start this video, I have a small request. Please watch this video till the end so that you can get all the points clearly understood. Okay, so without wasting time, let's get into this video. Okay, so first of all, before I start the definitions of this COPD, let me tell you about the prevalence of this disease in India. The prevalence of this disease in India has been estimated about 0.1 to 0.9% in the age group of, we can say in the age group ranging between 5 to 29 years of age, and the age group ranging from, we can say from 29 years or 29 above. It has been estimated that there is a rise of 1.6 to 28% of the cases in India. Okay, and if we will talk about the mortality all over the world, अगर हम worldwide mortality की बात करें, death rate, we may say that in the 2019 census that was done by the WHO, it has been seen that it has been collected that it has been reported that 323 million of the death cases has been occurred in the world due to COPD. That's what it is known as. It is the man third leading cause of the death. वर्ल्ड वाइड में ये तीसरे नंबर पर आता है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौत होती है. ठीक है ना. So this was all about the prevalence and incidence of this COPD. Okay, so now let's get into the main topic. Okay, so as we are going to discuss about the COPD, okay, so this COPD is mainly caused by two primary conditions. They are emphysema and chronic bronchitis. What is chronic bronchitis? Chronic bronchitis is the inflammation of the lining of the membrane, या we can say lining or we can say membrane of the bronchial tubules. यानी जो bronchial tubules होते हैं, अगर ये हम बोलेंगे this is the bronchus, this one is the bronchus, this is known as primary bronchus, this is primary bronchus, and this one is the secondary bronchus, and these one are the tertiary bronchus. Okay, so it means that inside these bronchus, inside this the air passage is there. So this one is known as, this one is the lining, okay, or membrane. Understanding? Mucous membrane is lining. Mucous membrane होता है वहाँ पे. When that mucous membrane is inflamed, जब वो mucous membrane inflamed होता है due to any cause, चाहे infection हो, चाहे कोई smoking करता हो, या चाहे कोई और cause हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये जो है ना lining बोलते हैं chronic inflammation, chronic bronchitis, sorry. And next one is the emphysema. Emphysema यहाँ पे आप देख सकते हो, this one are the alveoli. इनका काम क्या होता है? इनका मेन काम जो होता है that is exchange of gases. ठीक है ना. ये मेनली क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वहां पे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड के थ्रू जो हीमोग्लोबिन होता है वो ले जाता है ऑक्सीजन को टिश्यूज और सेल्स के अंदर उनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए और उनका जो है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्प करने के लिए. ठीक है ना. और मेन में होता क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा, राइट. तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, हाइपर प्रोलिफरेशन. जब हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ द मैक्रोफेज, या वी कैन से डब्ल्यूबीसी हुआ होगा वहां पे, और उसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक हुआ होगा. ठीक है ना. तो जब यहाँ पे ब्लॉक हुआ, अंडरस्टैंडिंग, तो जब ब्लॉकेज की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन या एयर यहाँ तक नहीं पूछेगा. जब एल्वियोलर में ऑक्सीजन नहीं पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जो एल्वियोलर है ना वो डैमेज हो जाएगा और वो इन्फ्लेमेड या वो कैसे इनलार्ज बनेगा, उसी को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा. और उसकी वजह से ना पेशेंट को दिक्कत होती है ब्रीदिंग में, एंड इट में आल्सो कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज नोन एज डिस्निया. पेशेंट वोंट बी एबल टू टेक द ब्रेथ. ओके, क्यों? क्योंकि एयरवे जो है ना वो इन्फ्लेमेड है. जब यहाँ से अगर एयर आता है, ठीक है ना, ट्रैके के थ्रू जब एयर आता है, और जब एयर यहाँ पे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछेगा, अगर मानते हैं कि जो टर्मिनल या जिनको हम मेनली बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, अगर यहाँ टर्शियरी ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इन्फ्लेमेशन की वजह से, हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स हुआ है,
ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स हुआ है या एक्सुडेट्स, और यहाँ पे एक्सुडेट्स जमा हुए, एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सुडेट्स, या वी कैन से सम फ्लूइड फिल्ड सेल्स आर हियर, ओके, सो दे विल ब्लॉक द पाथवे, ये ब्लॉक करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन या एयर एल्वियोली के अंदर नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से डैमेज होता है, और उसी को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा, और उसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत होती है ब्रीथ लेने में, ओके। सो नाउ हाउ कैन वी डिफाइन दिस COPD? We can define in such a way that it is a chronic obstructive, yeah, we can say inflammatory lung disease that causes obstructed airflow from the lungs. यानी जब लंग्स के अंदर ओबस्ट्रक्शन हुआ है तो वहां से एयर निकलेगा नहीं, ठीक है ना, वहां से एयर एंटर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एल्वियोले में मेनली डैमेज हुआ है, एल्वियोले के अंदर, या सॉरी जो टर्मिनल ब्रोंकियोलस है या जो टर्शियरी ब्रोंकियोलस है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है या ओबस्ट्रक्शन हुआ है, तो वहां पे एयर इनफ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। दैट्स व्हाट इट इज नोन एज क्रोनिक ओबस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अंडरस्टैंडिंग? Okay, so now next one is, let's take about this one, risk factors. Okay, so under the risk factor, first one is the age. See, we cannot say that advanced age, or we cannot say that the aging process may increase the chance of developing COPD. No, not by alone, यानी सिर्फ एजिंग प्रोसेस की वजह से भी COPD नहीं हो सकता है, बट अगर कोई पर्सन तंबाकू च्यूइंग करता है या सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से ही उसको COPD हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द सिगरेट स्मोकिंग। जो मेल्स होते हैं उनमें ज्यादा COPD केस होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सिगरेट के साथ एक्सपोज होते हैं, सिगरेट के साथ ज्यादा कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वन इज द टोबैको। ओके, टोबैको च्यूइंग में आल्सो इरिटेट your this one respiratory membranes or lining of your respiratory passage, and they can lead to the COPD. Next one is the asthma. What is asthma? Asthma is the chronic inflamed airways. Okay, जब आपकी एयरवे जो होता है, जब वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है और वहां पे सब्सिक्वेंटली हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से आपके लंग्स में एयर नहीं पहुंचेगा और COPD हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल डस्ट्स। अगर आप कहीं ऊपर काम कर रहे हो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, और वहां पे कुछ इरिटेंट्स हैं या केमिकल्स हैं या टॉक्सिक गैसेस हैं, अगर आप इनहेल करते हो तो वो आपका जो है ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द एक्सपोजर टू फ्यूम्स। ठीक है ना, जब भी आप कभी कहीं जगह काम करते हो एंड व्हेन देयर इज अ burning process of the fuel, and this burning process, that heat, it may affect, or you may get exposure with the fumes, and these fumes can burn, or it can damage your respiratory tract, or we can say respiratory membranes, the lining of the respiratory membranes, which can lead to this one necrosis and death of tissues, and ultimately can lead to the COPD. And last one is the allergens. Okay, so this was all about the risk factor. Now next one is the causes. In the causes, the first one is bronchial mucosal congestion. Bronchial means, ब्रोंकियल का मतलब क्या होता है? जो ब्रोंक्स होते हैं, यानी ब्रोंक्स जो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो प्राइमरी ब्रोंक्स हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, चाहे वो ब्रोंकस हो या ब्रोंकियोल हो, ठीक है ना। एंड म्यूकोसल मींस जो उसके अंदर होता है एक, ठीक है ना, एक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूक्स। एंड नेक्स्ट इज द कंजेशन। कंजेशन मींस एक्यूमुलेशन। एक्चुअली ये होता कैसा है, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा। आपका जो लिवर होता है, लिवर के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है ना। जब भी वो सिक्रीट होता है ना, तो वो क्या करता है, वो आपके लंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जब आपके लंग को प्रोटेक्ट करता है तो आपके लंग इन्फेक्शन नहीं होता या आपका लंग डैमेज नहीं होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग किया, तो क्या हो सकता है, और आपकी बॉडी ना वो लिवर, या कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपका लिवर वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है वो बनाना बंद कर देता है या कम सिक्रीट करता है, तो डिफिशियंसी ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन में आल्सो कॉज दिस COPD। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूक्स होता है ना वो अफेक्ट होता है, ठीक है ना। क्यों? इरिटेट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, और वहां पे कंजेशन होता है। कंजेशन मींस एक्यूमुलेशन। जब वहां पे ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर जब कंजेशन हुआ तो वो ब्लॉक करेगा पाथवे। एंड नेक्स्ट वन इज द एम्फीसेमा ब्रोंकाइटिस। एम्फीसेमा ब्रोंकाइटिस तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि ये these two conditions can contribute to COPD। और इस एम्फीसेमा और ब्रोंकाइटिस की मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड एयरवे सिक्रेशंस, यानी एयरवे जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है, हाइपर, जिसको हम बोलते हैं हाइपर प्रोलिफरेशन, तो उसकी वजह से भी एयरवे ब्लॉक होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, यानी डिजीज साइकिल, यानी डिजीज आपके लंग को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बोलते हैं ड्यू टू एनी कॉज। अगर हम बोलेंगे ड्यू टू एनी कॉज, इन केस ड्यू टू ईटियोलॉजी, ड्यू टू ईटियोलॉजी व्हाट हैपन इज मेनली, ईटियोलॉजी मतलब कोई भी कॉज हो सकता है। यहां से हम लेंगे मेनली स्मोकिंग और टोबैको, और यहाँ पे हम लेंगे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, जब आप
स्मोकिंग करते हो या जब आप टबैको करते हो, बट इट डज नॉट हैपन। ये जो हम बोलेंगे स्मोकिंग या टबैको की वजह से होता है, यह हमेशा याद रखना है कि एक बार स्मोकिंग करने से नहीं होता, बट प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ यूज, जब आप years एंड years आप यूज करते हो स्मोकिंग, बहुत सारे टाइम, बहुत सारे सालों के लिए आप यूज करते हो स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन से दिस स्मोकिंग एंड टोबैको इट कैन लीड टू द ब्रोंकियल इरिटेशन, यानी जो ब्रोंकस होता है, अंडरस्टैंडिंग, जो आपका ब्रोंकियल वॉल होता है, जो ट्यूब्स का वॉल होता है, वो इरिटेट हो सकता है, ठीक है ना, और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जब वो इरिटेट हो जाएगा एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स व्हिच कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड व्हिच कैन लीड टू द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे हो सकता है, ठीक है ना। एंड हियर इफ वी टॉक अबाउट हियर, यहां तो हमको समझ आ गया क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दे आर द टू मेन causes, okay, they can contribute to COPD, इसलिए पहले हमने ये देखा और अब हम देखेंगे ये एम्फाइसीमा कैसे होता है। जब आपका जो लिवर होता है, जब वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन डिफिशिएंसी मींस जब वो प्रोड्यूस नहीं करता है, क्या होता है, आपका जो लंग का टिश्यू होता है, टिश्यूज होता है ना, देयर इज जो टिश्यूज के दरमियान स्पेस होता है, उनको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर, अंडरस्टैंडिंग, या सेल्स के दरमियान और टिश्यूज के दरमियान जो स्पेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस, और वहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिन। ये इलास्टिन क्या होता है, ये एक्चुअली बचाता है, ये एक्चुअली आपके लंग्स को रिकॉइलिंग में मदद करता है, अंडरस्टैंडिंग, यानी ये डिफ्लेशन या वी कैन से डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन में मदद करता है या रिकॉइलिंग में मदद करता है, जो मेनली बना होता है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। लेकिन क्या होता है, जब वहां पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी होगा, ये बचाता होगा इस इलास्टिन को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिन, ये इलास्टिन ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। जब ये टूट गया तो वहां पे क्या होता है, तो जो इन्फ्लेमेशन होता है या जो भी इरिटेशन होता है, तो वो वहां पे होता है मेनली सिक्रेशन, बहुत सारा सिक्रेशन डेवलप होता है वहां पे अंदर, यानी एयरवेज के अंदर, ओके। यानी जो आपका मेनली जो एल्वियोलर होता है, ठीक है, एल्वियोलर के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, तो उसके ऊपर या उसके दरमियान जो एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिन, ठीक है ना। जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मतलब प्रोड्यूस हुआ ही नहीं, तो ये आपके लंग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से इलास्टिन ब्रेक डाउन होता है और आपका जो एल्वियोलर है ना, वो इन्फ्लेमेटरी बन जाता है और एनलार्ज बन जाता है और डैमेज भी होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपके एल्वियोलर में एयर नहीं पूछा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, दिस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा दे कैन लीड टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, hypoxia. What is hypoxia? Hypo means low, oxia means oxygen supply to the tissues. When there is a low oxygen supply to the tissues, it may lead to the tissue death. And last one is the hypoventilation. Hypo means low, ventilation means we can say breathing. आपका जो ये होता है लंग्स होता है ना, जब उसके अंदर बहुत सारा कम या कभी कभार एयर पूछता ही नहीं, ऑक्सीजन पूछता नहीं है, तो जिसकी वजह से सीओपीडी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट द सिम्पटम्स और वी कैन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस व्हिच occurs when a person is suffering from COPD. The first symptom is breathlessness. Breathlessness means insufficient oxygen supply towards the tissues, okay, or to the alveoli, understanding. And next one is the swelling of the lungs, feet and ankles. Why? Because when the tissues which are located at the legs, ankles and feet, yeah, we can say lower extremities, they won't get the enough oxygen, because of that thing they may die, okay. And even though they may also cause cyanosis, okay. Next one, the abdominal bloating. When there is the accumulation of the fluid inside the abdomen, that may lead to the that may cause abdominal bloating, okay. Irregular heartbeats, because your heart is unable to, एंड योर हार्ट भी जो होता है ना, उसके अंदर भी ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियम जो होता है ना, वही मेनली क्या करता है, हार्ट बीट को क्या करता है, इंड्यूस करता है मेनली, ठीक है। तो जब स्टिमुलेट करता है, जब वहां पे हार्ट मसल्स में जब ऑक्सीजन पूछा ही नहीं या कम पूछा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर या कहते हैं रैपिड हार्ट बीट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द कफ व्हाइल लाइंग. जब वो पेशेंट जब वो लाई होता है, जब वो बेड में लाई होता है, यानी सोने की पोजीशन में होता है, तो उसको कफिंग होता है. फैटिग मींस एक्सट्रीम टायर्डनेस, ओके. चेस्ट पेन, एंजाइना, ओके. डिस्निया, चेस्ट पेन क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ congestion of the fluid. Next one is dyspnea, means difficulty in breathing, and last one is cyanosis. What is cyanosis? Cyanosis will be the bluish discoloration of the skin. Why? Because your tissues are not getting the enough oxygen. Because of that thing, the tissues may
die. Okay, now next one is the diagnostic. How you can diagnose this COPD? First of all, you need to ask the history to the patient. यानी उसको पूछना है पहले कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हो, या आप टबैको च्यूइंग तो नहीं करते हो, या फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछना है. मे बी फैमिली में किसी के पास होगा, हो सकता है, इट माइट बी जेनेटिक आल्सो. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन. इन हेड टू टू एग्जामिनेशन आपको फिजिकल फीचर्स देखना है, यानी पेशेंट का बॉडी अपीयरेंस, mood, body build, everything you have to see. Okay, next one is the LFT or PFT. What is LFT? LFT is the lung or we can say pulmonary function test. इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, मेनली टेस्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना वो कैसे काम करता है, ब्रीदिंग कैसे हो रहा है. इसमें हम देखें टाइटल वॉल्यूम देखते हैं, वाइटल कैपेसिटी देखते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं. ये सब हम चेक करते हैं, उसी के बदल हम जानते हैं कि पेशेंट को सीओपीडी कैसे हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज द एबीजी एनालिसिस. What is ABG? It is arterial blood gas analysis. And we can say how much amount of, we can say how much levels of the oxygen and carbon dioxide are present in the blood. Okay, reacted with the blood. Next one is the CT MRI. And CT MRI is a radiological test. ठीक है ना, जो हम करते हैं, so which will give as the clear pictures, which will also give the evidence of the causes and also the symptoms. Understanding? Next one is the spirometry. What is spirometry? Spirometry means lung function test. Spirometry is the most abundant, most often test which is being used in detecting any problems in the lung, we can say respiratory tract. And last one is the lab test. In the other lab tests, you can also do the biopsies. You can do the lab tests. So in order to detect the COPD. Now next one is the complications. If this COPD left untreated, it can cause certain type of infections. आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं. इट कैन कॉज आल्सो लंग कैंसर. अगर ये बहुत देर तक ठीक नहीं किया गया तो लंग कैंसर डेवलप हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग? जैसे मैंने बोला, कार्डियक डिसइरिथमियाज हो सकता है, एब्नॉर्मल हार्ट रेट हो सकता है. लास्ट वन इज द हाइपरटेंशन इन द लंग आर्टरीज. यानी जो लंग आर्टरीज होती है उनमें ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचता है लंग टिश्यूज के अंदर, या ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहां पे लंग पैसेजेस में, या वी कैन से एयरवे पैसेज. एंड लास्ट वन इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट, हम इसको, हाउ डू यू ट्रीट दिस सीओपीडी एज अ नर्स? As a nurse, how can you treat this COPD? First of all, you must give the bronchodilators. Broncho means bronchioles, we can say bronchial tubes, and dilators means you are giving the drugs which can dilate or relax these tubes. So bronchodilators are the drugs which can relax or expand the opening so that the oxygen may flow towards the lungs. Okay, so उसके अंदर हम mainly क्या देते हैं, salbutamol and albuterol. Okay, next one is the corticosteroids. Corticosteroids are mainly given in order to reduce the inflammation as well as reduce the pain. Understanding? So in इसके अंदर क्या आएगा, dexamethasone, prednisolone. ठीक है ना. And next one is the anticholinergic. What are anticholinergic? Anticholinergic are the substances, ठीक है ना, which block the pathways of the neurotransmitters. न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर होता है एसिटाइलकोलिन. जो एसिटाइलकोलिन होता है ना उसको ब्लॉक करता है, ताकि वो लंग में, क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है ना, अगर वो नर्व्स थ्रू वहां से पूछेगा और आपके लंग को बोलता है कि और एक्सपेंशन करो, ठीक है ना, इनहेलेशन करो, एक्सपिरेशन करो, लेकिन वहां पे जब ऑक्सीजन पूछा ही नहीं तो इससे क्या हो सकता है, प्रेशर पड़ सकता है एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई और डैमेज हो सकता है. ठीक है, इसीलिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर की पाथवे को ब्लॉक करता है. फिर आपका जो लंग के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो डैमेज होता है वो थोड़ा कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स. ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स हम इसलिए देते हैं ताकि हम हाइपर सिक्रेशन से बच सके. हमारे लंग्स के अंदर जो पेशेंट के अंदर सिक्रेशन होता है, बहुत सारा सिक्रेशन होता है ना, तो उस चीज से बचने के लिए, यानी वो सिक्रेशन जो होता है ना वो क्या करती है, वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में कंजेस्ट होती है, यानी एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से ब्लॉक होता है. तो इसलिए हम ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स इसमें हम देंगे थियोफाइलिन और एमाइनोफाइलिन. So this was all about the medical treatment of this COPD. Okay, so the next one is about the surgical treatment. What is the surgical treatment of COPD? When the medical treatment is unable, or we can say then the pharmacological treatment is unable to recover or restore your condition, that is COPD, then there is only one way to cure and treat this disease. There are mainly three types of the surgery which are performed in order to improve the conditions of your lungs. The first one is lung volume reduction surgery. In this, a surgeon, he is going to remove the small portion or wedges of the damaged tissues of the upper parts of your lungs in order to improve the
in order to prevent the further damage of your lungs. Next one is the lung transplantation. Understanding जिसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक चीज बताऊंगा कि जब कोई किसी के अंदर हम लंग ट्रांसप्लांट करते हैं, नया लंग हम उसको अडॉप्ट करते हैं, वहां पे मेनली क्या होता है, आपकी बॉडी की तरफ से होता है ऑर्गन रिजेक्शन रिस्पांस आता है। जो इम्यून सेल्स होते हैं ना वो इसको नहीं पहचानते, इसलिए जो पेशेंट होता है ना उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेशन लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट द बुलेक्टॉमी। व्हाट इज बुलेक्टॉमी? जब आपका जो एयर सैक्स जब वो डैमेज होते हैं, ठीक है, या एल्वियोल जब डैमेज होते हैं, तो वहां पे बनता है क्या, लार्ज एयर स्पेसेस, जिनको हम बोलते हैं बुले, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो डॉक्टर क्या करता है, ही इज गोइंग टू रिमूव दीज बुलेज from your body in order to improve the conditions of lungs. Okay, and this was all about the surgical treatment of this disease.